Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to start a fourth lecture of thermodynamics. In this lecture, we are going to discuss about the what is matter and ideal gas in detail. So till now, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. One important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numerical, short notes and notes. So follow me there and subscribe my YouTube channel. So without wasting your time, let's get started with the video. So student, if we talk about the question, that is what is matter. So basically, as you study in the earlier classes, the matter is divided into a two category. First category is solid and second category is fluid. So in the case of solid, again categorized or classified into a two category, that is called rigid body and deformed body. And if we talk about the fluid, so fluid can be considered as a liquid also, or by considered as a gases also. So this is the basic classification which we are going to study step by step. So first of all, we discuss what is solid. So basically, the solid is the substance which have finite amount of deformation under the action of certain force, or when we remove that amount of force from the solid, then the solid regain its original position. So basically, the definition says that the solids are the substance which have finite deformation under the action of force, and it try to regain its original position after the removal of the load. मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉलिड एक तरीके का ऐसा सब्सटेंस है वो जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक डिफॉर्म हो जाता है जब हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स सॉलिड पे अप्लाई करते हैं, और जहाँ हमने वो लोड या फोर्स सॉलिड से रिमूव कर दिया तो जो सॉलिड होता है वो ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. अगर वो रीगेन नहीं कर पाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि सॉलिड जो है वो क्या हो गया है, डिफॉर्म हो चुका है. तो सॉलिड का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बस आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड में फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है अंडर द एक्शन ऑफ फाइनाइट फोर्स. जब तक सर्टेन मिनिमम फोर्स हम लगाएंगे तभी डिफॉर्मेशन होगा. जैसे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉलिड को बेंड होने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पिंच ऑफ अगर फोर्स लगाएंगे तो नहीं डिफॉर्म होगा, कुछ इतना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तभी जो है डिफॉर्मेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड के बारे में. दैट इज ऑल अबाउट द सॉलिड डेफिनेशन. नाउ वी टॉक अबाउट द फ्लूइड. फ्लूइड, as you see, as I have written here, that the fluid is the substance which has infinite deformation under the action of shear force, no matter how small it is. Force, no matter how small force it is. तो इसका मतलब क्या हो गया? It means कि जो fluid जो होता है वो pinch off, अगर हम थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करते हैं फ्लूइड के ऊपर तो वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चला जाता है. वो हम नहीं ध्यान देते हैं, मतलब हमारा ये कंसर्न नहीं होता है कि वो कितना छोटा फोर्स हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं, बस हमें पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है फोर्स अप्लाई करने पे जो फ्लूइड जो है डिफॉर्म हो जाता है. तो ये बेसिक डिफरेंस था सॉलिड और फ्लूइड के बीच में, कि सॉलिड जो है डिफॉर्म होता है एक पर्टिकुलर फोर्स अमाउंट पे अप्लाई करने पे और पर्टिकुलर अमाउंट तक डिफॉर्म होता है, जबकि फ्लूइड जो है वो पिंच ऑफ और थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ एक्शन फोर्स एक्शन अप्लाई करने पे इन्फिनाइट टाइम डिफॉर्म हो जाता है. इफ यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यू कैन सी द सॉलिड ग्राफ इज लुक लाइक दैट, इज like this, and this point, if we consider this point is the proportionality limit of the solid and this point is the elastic limit of the solid. It means the Hooke's law. If we talk about the Hooke's law is valid
till the point elastic limit. Above elastic limit the Hooke's law does not work or not valid. तो Hooke's इस स्ट्रेन और स्ट्रेन से हमें स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर जैसे ही हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन अप्लाई होगा, दोनों के बीच में डेवलप होगा, और जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अगर हमने सॉलिड को दिया तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और अगर हमने वो स्ट्रेस जो है रिमूव कर लिया, हमने लोड को रिमूव कर लिया, तो क्या होता है कि वो सॉलिड जो है अपने पोजीशन इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। Now again come to the classification of the solid, that is classified into a two category, rigid body and deformed body. In the case of rigid body, suppose what will happen, this is the solid and these two are the molecules. Okay, these two are the solid molecules. So it means the molecules distance between the two molecules does not change in the case of rigid body. Okay, the distance between the two molecules of the solid does not change, then we can say that this solid is called rigid body. Okay, rigid body तब किसको कहते हैं, जब किसी सॉलिड की जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसी सॉलिड के किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो, डिफॉर्म ना हो, उसको हम कहते हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। और इसी का अपोजिट क्या होता है कि अगर इन दोनों का जो पोजीशन है चेंज होता हो, या यानी कि वो एक दूसरे के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स उनका रिड्यूस हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि वो डिफॉर्म हो जाएगी। इट मीन्स मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस चेंज इजीली इन द केस ऑफ डिफॉर्म बॉडी। ओके, तो ये डिफरेंस आपको पता चल गया कि सॉलिड को हमने दो पार्टों में कैटेगराइज किया, रिजिड बॉडी एंड डिफॉर्म बॉडी। रिजिड बॉडी वो कहलाती है जिसमें सॉलिड के किसी भी दो मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस के बीच में चेंज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं गैसेस पे आ जाते हैं। तो गैसेस पे आने में क्या होता है कि अब हम गैसेस पे आ जाते हैं। अब जो हम फ्लूइड्स पे आ जाते हैं। फ्लूइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं लिक्विड और गैसेस में। अब देखिए, अगर हम बात करें, पहला तो डिफरेंस फॉर सॉलिड और फ्लूइड में ये है कि इन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और कैसा डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस है इनका शेप गेन का। मींस कि सॉलिड का तो एक पर्टिकुलर शेप होता है, क्यूबॉटिकल या स्फेरिकल या कोई भी क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर शेप हो गया, सर्कल शेप हो गया, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें या फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड जो है हमेशा जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसका जो है शेप गेन करता है, ठीक है। जैसे लिक्विड को अगर हमने एक सिलेंडर या एक वास्क में रख दिया, ट्रायंगुलर, सर्कुलर या सिलेंड्रिकल फॉर्म में ग्लास में रख दिया, तो वो क्या लिक्विड जो है और जो गैसेस जो है उसका जैसे फ्लूइड को हमने किसी कंटेनर में रख दिया तो वो जो फ्लूइड जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम, मतलब कंटेनर का शेप कवर कर लेती है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस था। अब हम बात करते हैं लिक्विड और गैसेस के। फ्लूइड को मैंने दो चीज़ में कैटेगराइज किया, लिक्विड और गैसेस में। तो लिक्विड के बारे में क्या कहा जा रहा है कि लिक्विड हैव फ्री सरफेस, लिक्विड हैज़ फ्री सरफेस एंड गैसेस डोंट हैव फ्री सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज हमने एक ग्लास ले लिया, ठीक है, ये ग्लास है हमारा, ये हाफ फिल्ड है लिक्विड से, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विड क्या हो गया, यहाँ पे ये हाफ फिल्ड है, तो इसका ये जो है इतना सरफेस एरिया ही फिल्ड है लिक्विड से, इतना तो उसका फ्री सरफेस हो गया ना, ये फ्री सरफेस हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जहाँ तक लिक्विड कंटेनर में फिल्ड है वहाँ तक तो वो पूरा उसने सरफेस उसको कवर कर रखा है, लेकिन उसके अबव अगर कंटेनर आपका खाली है, फ्री सरफेस मतलब खाली, तो क्या हुआ, वहाँ पे जो हमारा है लिक्विड का जो होता है फ्री सरफेस अवेलेबल होता है। तो वही हमने बताया, हैव फ्री सरफेस। अगर हम इसी तरीके से गैस का ले लें, डोंट हैव फ्री सरफेस, जैसे हमने गैस को हमेशा हमें
क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो अपने आप उड़ जाती है, ठीक है, कंटेनर में ही, क्लोज कंटेनर में रहता है। तो यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब अगर हज़ारों में मॉलिक्यूल्स हैं गैस के तो भी वो पूरे कंटेनर को कवर करेगी, और जो कुछ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो भी वो पूरे कंटेनर को कवर करेगी, मतलब कि इट हैज़ नो फ्री सरफेस, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं कि नो शेप, इसका मतलब क्या हो गया, नो शेप का मतलब क्या हो गया, लिक्विड हैज़ नो शेप। अब देखिए आप ये कंटेनर देख रहे हैं, ये हाफ फिल्ड ग्लास है, इस कंटेनर में इस लिक्विड का कोई अपना खुद का शेप नहीं है, लिक्विड का खुद का कोई शेप नहीं है। ये शेप किसका है, ये कंटेनर का, सिलेंड्रिकल कंटेनर का शेप है, और वो शेप होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसका मतलब क्या है, नो शेप। लेकिन जो थर्ड पॉइंट देखिए मैंने लिखा है ओन साइज, इट हैज़ ओन साइज, लिक्विड हैज़ ओन साइज। तो सपोज कि हमारे पास लिक्विड का लिक्विड जिस सिलेंडर में भरी हुई है, तो उसका वॉल्यूम जो है V है, ठीक है। अब ओन साइज का मतलब क्या हो गया, अब जो लिक्विड है वो तो हाफ फिल्ड है, ठीक है, तो हाफ फिल्ड है, मतलब कि क्या हुआ, इसकी हाफ, कंटेनर का हाफ कर दो तो वो उसका साइज आ जाएगा लिक्विड का। तो लिक्विड का खुद का साइज कितना आ गया, जो लिक्विड हाफ फिल्ड है कंटेनर में, तो इसका मतलब V/2 जो होगा उसका खुद का साइज होगा। ये नो शेप और ओन साइज में कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो V जो शेप है वो कंटेनर का शेप है, और जो साइज मैं बता रही हूँ वो कंटेनर का हाफ होगा जितना फिल्ड होगा, मतलब अगर हाफ फिल्ड है तो हाफ V/2 हो जाएगा, 1/4 है तो 1/4 ऑफ वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे हैव फ्री सरफेस, नो शेप, ओन साइज, ठीक है। अब गैसेस की बात करते हैं, तो गैसेस क्या होती है, डोंट हैव फ्री सरफेस, डोंट हैव फ्री सरफेस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नो शेप, गैस का कोई शेप नहीं होता है, ठीक है, और ना ही नो साइज, तो इसमें साइज का भी नहीं कोई इशू आता है, क्योंकि इसमें जो है कंटेनर, चाहे एक मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है या हज़ारों मॉलिक्यूल्स है, वो एक क्लोज कंटेनर में है तो वो पूरा वॉल्यूम ही कवर करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्या, मैटर, सॉलिड, फ्लूइड, रिजिड बॉडी, डिफॉर्म बॉडी एंड लिक्विड एंड गैसेज। तो ये इसके बेसिक चीज होगी। नाउ वी टॉक अबाउट द आइडियल गैसेस। अब आइडियल गैस के जो लॉ है जनरेट हुआ है वो 2 लॉ के कॉम्बिनेशन से हुआ है। कौन कौन से वो 2 लॉ है, बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ। तो देख लेते हैं बॉयस लॉ और चार्ल्स लॉ क्या होता है। मीन्स इन द केस ऑफ बॉयस लॉ द pressure is inversely proportional to the volume. Okay, pressure is inversely proportional to volume at constant temperature. That law is called as Boyle's law. ठीक है। और हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो उसमें क्या होता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड सेकंड कंडीशन होती है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इन दोनों लॉज को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, आइडियल गैस लॉ निकलता है, जो कि होता है PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है। अब P यहाँ क्या है, P जो है एब्सोल्यूट प्रेशर है जिसकी यूनिट होगी किलो पास्कल में। ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, गेज प्रेशर नहीं है, इसलिए हम इसकी यूनिट ले रहे हैं किलो पास्कल में। वॉल्यूम जो होगा वो होगा मीटर क्यूब में। M जो है मास ऑफ द गैसेस इन kg। R जो है वो गैस कांस्टेंट है किलो जूल पर kg केल्विन में। और T जो है टेम्परेचर है केल्विन में। हमें यहाँ पे टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में रखना है। ठीक है। तो हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन आई वो होती है PV इज इक्वल टू MRT। ठीक है। अब यहाँ जो M जो है वो मास है। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं, मैं आपको कई बार बताया, हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ मोल्स आता है, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें से हमने मास को निकाल लिया, दैट इज मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब हम इस M को हम रिमूव कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, PV इज इक्वल टू NMRT। PV इज इक्वल टू NMRT। ठीक है। तो यहाँ ये किस कंडीशन ये हो गया, जिसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स
गिवन होंगे और जो गैसेस होगा उसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट जानते, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता ही होता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमें जो एक्चुअली में ये जो गैस कांस्टेंट है इसकी यूनिट जो है, जो इसकी जो क्वांटिटी वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रहती, हर पर्टिकुलर गैस के लिए चेंज होती है। लेकिन हम यहाँ पे आइडियल गैस लॉ निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल सबके लिए निकाल रहे हैं, तो हमको क्या, हमने ये एनालाइज किया कि हमें एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए क्या, एवोगैड्रो ने एक हाइपोथेसिस जनरेट किया कि at particular temperature pressure volume, every gases has same number of moles, अगर number of moles same हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या, mr को हमने रिप्लेस करके किससे रिप्लेस कर दिया, mr डैश से, ठीक है, किससे रिप्लेस कर दिया, r डैश से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, mr को रिप्लेस कर दिया r डैश से, ठीक है। तो ये हमारा कहलाया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है हमें फिक्स मिली, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है सबके सेम है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो हम कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 किलो जूल पर किलो मोल्स केल्विन, ठीक है। तो ये हमारे पास R डैश की वैल्यू आ गई, जो हम अक्सर अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। तो यूनिट, इसके यूनिट के हिसाब से भी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन पर्टिकुलरली हम लोग यही वाला यूज़ करते हैं, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ठीक है। अब यहाँ R की वैल्यू नॉट कांस्टेंट होती है। तो अब हमारा क्या जो इक्वेशन बन गया, अब देखिए इस इक्वेशन को हमने चेंज करके क्या लिख लिया, PV इज इक्वल टू NR डैश T। तो ये फाइनल हमारा आइडियल गैस लॉ यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें थी आइडियल गैस लॉ के बारे में। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो दो टाइप के आइडियल गैस होते हैं, एक होता है सेमी परफेक्ट और परफेक्ट आइडियल गैसेस, ठीक है। तो पहला होता है सेमी परफेक्ट एंड सेकंड वन इज परफेक्टली आइडियल गैसेस। इन सेमी परफेक्ट में क्या होता है कि जो Cp और Cv की वैल्यू होती है वो जो होती है वेरिएबल रहती है। अब Cp Cv क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और इस केस में परफेक्टली आइडियल गैसेस के केस में क्या होता है कि Cp और Cv की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं कभी कभी, Cp Cv किस में कांस्टेंट होता है किस में नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने आपको आइडियल गैस के बारे में हो गया। अब मैंने आपको बताया था आइडियल सॉलिड या हम कहते हैं रिजिड सॉलिड। सॉलिड के दो कैटेगरी मैंने बताया था, रिजिड सॉलिड और डिफॉर्म सॉलिड। अगर रिजिड सॉलिड की बात करें तो मैंने आपको बताया था जिसके किसी भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब चेंज क्यों नहीं होता है, कभी सोचा है क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि हम कितना भी एक्सटर्नल फोर्स हम सॉलिड के ऊपर अप्लाई कर लें, लेकिन वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना हाई होता है कि वो एक्सटर्नल फोर्स जो है उसको अफेक्ट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमको क्या पता चलता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, ठीक है, कि आइडियल सॉलिड हैज़ और रिजिड सॉलिड हैज़ इन्फिनाइट नंबर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आइडियल सॉलिड और रिजिड सॉलिड जो है उसका इन्फिनाइट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। और क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो उसको अफेक्ट नहीं कर पाता। ये हो गया। अगर हम गैस की बात करें तो उस केस में आइडियल गैस के ज़ीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है, ज़ीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आइडियल गैस के लॉ। अब हम डिस्कस करते हैं, अब देखिए अब जो है टॉपिक के आगे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि कब कोई गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में भी आता है कि कब कोई गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो आंसर इसका ये है कि एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ये जो कंडीशन होगी उस पर जो है गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो याद रखिएगा, एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, दोनों अपोजिट है। अब आते हैं हम
किस पे, जैसे काइनेटिक थ्योरी, जैसे हमारा आइडियल गैस लॉ के अकॉर्डिंग पहले हमारा क्या निकला, PV इज इक्वल टू MRT, एंड नेक्स्ट हमने जब जो हमने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारा जो आइडियल गैस लॉ निकला वो हो गया PV इज इक्वल टू NR-T। तो अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें तो हमारे पास दो अजम्पशन हम कैरी आउट करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं कि क्या, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज ज़ीरो। हम ये अजम्पशन लेते हैं कि वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़ीरो हैं, ठीक है, ये अजम्पशन ले लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरा हम अजम्पशन लेते हैं देयर इज़ नो एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये दोनों अजम्पशन लेने के बाद ही हम जो है आइडियल गैस लॉ को अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है। अब जो है जब ये सारी चीज़ें नहीं थी तो क्या हुआ था कि क्लॉसियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो जितना भी वॉल्यूम होता है कंटेनर का, ठीक है, वो जो वॉल्यूम होता है वो लेस देन, क्या बोला उन्होंने, क्लॉसियस सजेस्ट दैट द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स, जितना भी फ्री वॉल्यूम है अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब देखिए गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके बीच में कुछ अमाउंट ऑफ वॉइड जो वॉल्यूम भी अवेलेबल होता है। तो क्या अगर हम टोटल कंटेनर की बात करें, अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो वॉइड जो खाली जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस बच जाता है, तो वो अगर हम उसको रिमूव कर दें टोटल वॉल्यूम में से, तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन जो किस तरीके की बनेगी, तो वो बनेगी जैसे उसमें करेक्शन फैक्टर हम यूज़ कर ले, P इज इक्वल टू V माइनस सम अमाउंट ऑफ, हमने क्या मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम, गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, तो हमारा बन जाएगा P V माइनस B इज इक्वल टू MRT। अब जो है दूसरे साइंटिस्ट ने हमें बताया, वॉन्डरवॉल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम कंसीडर करें दैट टू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, अगर हम मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को हम कंसीडर करते हैं तो क्या होगा कि प्रेशर में कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वॉल्यूम में सब्सट्रैक्शन किया था, कुछ वॉल्यूम घटाया था, लेकिन क्लॉसियस ने सजेस्ट किया कि जब आप वॉल्यूम घटा रहे हो तो अट्रैक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा। इसका मतलब कि जो प्रेशर में सेम अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू MRT। तो इस टाइप की इक्वेशन निकल गई। अब यहाँ पे B और A क्या चीज़ है, B जो है वो है करेक्शन फैक्टर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, ठीक है। एक मिनट, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, B जो है वो है कितना करेक्शन फैक्टर है फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, फॉर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस, और जो A जो है वो करेक्शन फैक्टर फॉर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये सारी वॉन डेर वाल इक्वेशन हमारा इस टाइप से आ गया। तो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइडियल काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हम दोनों चीज़ें ज़ीरो और देयर इज़ नो इंटरमॉलिकुलर फोर्स को हम कंसीडर करते हैं, मतलब ये अजम्पशन ले लेते हैं। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को नहीं कंसीडर करते और ये अजम्पशन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्लॉसियस ने ये सजेस्ट किया था कि हमें वॉल्यूम को कुछ घटाना चाहिए, और जो वॉन डेर वाल ने जो सजेस्ट किया था वो उन्होंने क्या बताया था कि प्रेशर को थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए, जो कि होता है इंटरमॉलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन की वजह से। तो और ये B और A जो इक्वेशन मैंने लिखी है वो करेक्शन फैक्टर है, एक वॉल्यूम के लिए, एक मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी आज की क्लास के बारे में। आई थिंक मैं आपको आइडियल गैस के बारे में काफ़ी समझा चुकी होंगी, साथ में व्हाट इज़ मैटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी सारे नोट्स बुक्स को शेयर करती रहती हूँ, और मेरे वीडियोस के अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना नॉलेज लोगों के पास तक पहुंचा सकूं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।